آن لائن واچ کر رہی ہیں، پلیز میرے ساتھ آپ نکالیے گا پرانے عہد نامہ میں سے. آج ہم سیکھیں گے خروج کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ میں یوں لکھا ہے، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. بلند آواز سے ہم کہیں گے خداوند کا شکر ہو، کیونکہ خدا نے آج پھر سے ہمیں کلام کو سیکھنے کا فضل عطا کیا. عزیزو، آج کے میسج کا ہمارا عنوان ہے پاک خون. آج ہم ہولی بلڈ کے تعلق سے سیکھیں گے پاک خون. ابھی جو آیت مقدسہ ہم نے پڑھی، ابھی جس آیت مقدسہ کی ہم نے تلاوت کو سنا، اس آیت مقدسہ کے اندر کہا گیا ہے، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. کس خون کی بات کی گئی ہے؟ اگر اس سارے چیپٹر کو ہم بڑی ڈیپلی اس کی اسٹڈی کریں، گہرے طریقے کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں، تو ہمیں ملتا ہے کہ جب مصر کی غلامی سے خدا نے بنی اسرائیل قوم کو نکالنا تھا، تو اس وقت مصر کے اوپر بڑی بڑی آفتیں آئیں، کیونکہ وہ لوگ بتوں کو مانتے تھے اور زندہ خدا کو نہیں مانتے تھے، اور خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے، اور بنی اسرائیل قوم کو جانے نہیں تھے دیتے، جس وجہ سے خدا نے ان پر بڑی بڑی آفتیں بھیجی. اور ان آفتوں میں سے سب سے بڑی آفت پیلوٹوں کی موت تھی، پیلوٹوں کی وفات. اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تم ایک بے عیب برا لینا، اسے ذبح کرنا. یہ سارے چیپٹر کے اندر ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں، اور خون کی بات کی گئی ہے کہ خون کو، برا کے خون کو آپ اپنی چوکٹوں کے پر لگا دیجیے گا، تاکہ جب فرشتہ آئے تو وہ خون کو دیکھ کر تمہیں چھوڑتا جائے گا. ان گھروں کو فرشتہ چھوڑ دے گا جن گھروں کی چوکٹوں کے اوپر برے کا خون لگا ہوگا. اور عزیزو، ایسا ہی ہوا جب خدا نے یہ پرومس کیا. خروج 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، برے کا خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. جی ہاں، خون ایک نشان تھا، اور عزیزو یہی خون جب چوکٹوں کے پر لگا تو حقیقتاً ایسا ہوا. جب فرشتہ آیا جس نے پیلوٹوں کو مارنا تھا، اس فرشتہ نے یہودیوں کے گھروں کی چوکٹوں پر خون کو جب دیکھا تو فرشتہ نے ان گھروں کو چھوڑ دیا. اور مصر کے اندر مصری لوگوں کے جو پیلوٹوں تھے، بادشاہ سے لے کر ایک عام آدمی تک، ان کے پیلوٹوں کو مار دیا گیا، کیونکہ ان کے گھروں کے اوپر برے کا خون نہ تھا، اور خون نشان ایک سمبل تھا. عزیزو، یہ خون ایک نشان تھا، اور مسیح یسوع کے خون کی تصویر تھا. یہ خون مسیح یسوع کی قربانی کی تصویر تھا. اس وقت یسوع مسیح ناصری ابھی تک ذبح نہ ہوئے تھے، یسوع مسیح نے ابھی تک کفارہ نہ دیا تھا،
और उस वक्त ये जो मेंढों और बकरों का खून एक सिंबल था, निशान था। लेकिन अजीजों, यीशु मसीह नासरी ने जब कोहे कलवरी के ऊपर अपना पाक खून बहाया, तो उस पाक खून के अंदर कुव्वत और कुदरत और ताकत और पावर पाई जाती है। उस दौर में बर्रे का जो खून था वो सिर्फ एक निशान था, और यीशु मसीह नासरी की तस्वीर शो करता था वो खून। लेकिन जब यीशु मसीह नासरी ने अपने पाक बदन का पाक खून बहाया, खून का कफारा दिया, तो यीशु के पाक खून से ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, बनिनो इंसान के पाप धुल गए। मैं आज ये बताना चाहता हूँ, ये एक सच्चाई है, यीशु का खून आज भी हमें पाक करता है। जीसस के खून के अंदर ये कुव्वत है, कुदरत है। जिस तरह यहूदियों ने अपने घरों के चौखटों के ऊपर बर्रे का खून लगाया, यहोवा खुदा के कहे के मुताबिक यहोवा खुदा ने मूसा से कलाम किया, और बनी इस्राएल कौम ने मूसा के मुंह से खुदा के कलाम को सुनते हुए उस कलाम को कबूल किया। लेकिन अजीजों, वो खून एक निशान था, उसके अंदर इतनी कुव्वत ना थी कि वो खून खुद बनी इस्राएल कौम को सेव करे, वो सिर्फ एक निशान था। लेकिन यीशु का खून हकीकतन जिस जिंदगी के ऊपर लग जाता है, यीशु का खून जिस जगह लग जाता है, यीशु का खून जिन चौखटों के ऊपर लग जाता है, यीशु का खून जिन जिंदगियों के ऊपर लग जाता है, उन जिंदगियों के ऊपर कभी भी मौत की तस्वीरें नहीं आती, शैतानी तस्वीरें नहीं आती, अब्लीसी कुत्ते उन्हें उन जिंदगियों को छू नहीं पाती। अजीजों, यीशु के खून के अंदर जिंदगी पाई जाती है। मैं पुराने अहदनामा की स्टडी कर रहा था, तो पुराने अहदनामा में कहा गया कि तुम खून को ना खाना ना पीना, क्योंकि खून में जान पाई जाती है। ये बड़ी ताकीद की गई, बड़े बड़े खास हुक्म कायन को दिए गए कि खून को ना खाना, क्योंकि खून में, जी मेरे साथ बोलिएगा, खून में जान पाई जाती है। जान के सबब से कहा गया कि खून को ना खाना। लेकिन जब यीशु मसीह नासरी ने फसह का खाना अपने शागिर्दों के साथ, अपने रसूलों के साथ खाया, तो यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया अहद देता हूं। पुराना अहद ये था, जी हाँ, गौर से सारे सुनिएंगे, जितनी जवायत यहाँ पर मौजूद है, मेरी दरख्वास्त है हर शख्स गौर से सुनेंगे, जो ऑनलाइन मुझे वॉच कर रही हैं सब गौर से सुनेंगे, हर शख्स कलाम को सुनेगा, क्योंकि कलाम के वसीले खुदा हमें बरकत देता है। कलाम हमारी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स पैदा करता है। जब हम कलाम को गौर से सुनते हैं तो कलाम हमारी ढाल बनता है, और कलाम हमारी कांट छांट करता है। अभी हम हॉली ब्लड के ताल्लुक से सीख रहे हैं, हॉली खून के ताल्लुक से सीख रहे हैं, पाक खून क्या काम करते हैं। जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद है, पाक खून क्या काम करते हैं। यीशु ने कहा, जब फसह का खाना जीसस ने अपने शागिर्दों के साथ खाया, तो यीशु मसीह नासरी ने अपने शागिर्दों को कहा कि मैं तुम्हें एक नया अहद देता हूं, ये लो प्याला और इसे पियो। जी, जितने बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, प्लीज, जितने बच्चे यहाँ पर मौजूद है, मुकद्दसीन मौजूद है, मेरी दरख्वास्त है हर शख्स गौर करेगा कलाम की तरफ। कुछ देर के लिए हर शख्स गौर करेगा, तवज्जो करेगा कलाम की तरफ, क्योंकि कलाम हमारी कांट छांट करता है, कलाम हमारी ढाल बनता है। जब हम कलाम को सुनते नहीं तो कलाम से हमें बरकत नहीं मिलती। अभी मैं बता रहा था कि यीशु का जो लहू है, जीसस का जो ब्लड है, ये ब्लड हमें यकीनन पाक करता है। यीशु का लहू हमें यकीनन जो है ये आज़ाद करता है और नया बनाता है। और कब हमें यीशु का लहू, जैनसा बेटी खड़ी हो जाएगी, कब यीशु का लहू हमें नया बनाता है? जब हम यीशु के लहू को समझ आते हैं, जब
तक हम यीशु के लहू को समझते नहीं। जी बेटे प्लीज सारे गौर से सुनिएगा और कलाम की तरफ तवज्जो कीजिएगा। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रही हैं, मेरा ईमान है जब आप गौर से कलाम को सुनेंगे, क्योंकि आज का जो मैसेज है ये ब्लड के ताल्लुक से है। ब्लड क्या काम करता है? खून के ताल्लुक से हम सुनते तो हैं, पुराने अहदनामा में हमने सुना था कि खून को ना खाना क्योंकि खून में जान पाई जाती है। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम मेरे खून को खाओ, मेरे खून को पियो, क्योंकि इसमें मेरी जिंदगी पाई जाती है। जिस तरह पुराने अहदनामा में, जी प्लीज गौर से सुनिएगा, जिस तरह पुराने अहदनामा में कहा गया था कि खून को ना खाना क्योंकि खून में जान पाई जाती है, लेकिन यीशु ने कहा कि मेरे खून को पियो, मेरे खून को खाओ। जो शख्स मेरा खून खाता है, जो शख्स मेरा खून पीता है, उस शख्स में हमेशा की जिंदगी है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में यीशु की जिंदगी आ जाए, तो जरूरी है कि आप अपने ऊपर यीशु का खून मांगें। अजीजों, यीशु के खून के अंदर यीशु की जिंदगी पाई जाती है। हाँ, इसमें नो डाउट, यीशु के खून में यीशु की जिंदगी पाई जाती है। जब आप जीसस के लहू को समझ जाते हैं कि यीशु के खून में यीशु की जिंदगी पाई जाती है, और उस वक्त जब आप अपने ऊपर अपनी जिंदगी में यीशु का खून लेते हैं, मांगते हैं, तो आपके अंदर यीशु की जिंदगी काम करना शुरू कर देती है। और जो ही यीशु का लहू आपकी जिंदगी में आता है, उस वक्त सबसे बड़ा एक काम होता है कि आपकी लाइफ के अंदर से हर तरह की निजात जाती रहती है, आपकी जिंदगी से मुर्दापन जाता रहता है। जी प्लीज गौर से सुनिएगा, सारे जितने मुकद्दसिन यहां पर मौजूद हैं, हर शख्स गौर से सुनेगा, कलाम की तरफ हम तवज्जो करेंगे। मुझे पता है यीशु के लहू से इब्लीस को बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है। जितने यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ देर के लिए सारे तवज्जो करेंगे, हर शख्स तवज्जो करेगा। मेरा ईमान है जब आप तवज्जो करेंगे, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा, आप बरकत पाएंगे, क्योंकि कलाम के वसीले खुदा हमें ब्लेस करता है, कलाम हमें बरकत देता है।